Very important discussion today. Very important topic today. So I just want to have 15 to 20 minutes, not more than that. And trust me, after today's session, you will be having a clarity over client counseling, client handling. And I have done this throughout my life. And a success rate is the maximum in this way of client counseling. So it is not easy. It is not something which can be done by anybody. Of course, you need to be skilled. You need to have uh, such quality to handle clients, to handle the counseling. But it is not impossible. It is something, if you tried, you will definitely succeed. So मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगले 15 से 20 मिनट प्लीज फोकस ऑन दिस presentation and try to execute the same just after this call. Just after this call. Do not wait for a day or maybe after a week or after Diwali or maybe one day I'll do this. No, no, no. Start doing this just after this call. So our topic is client counseling. So there are few questions which I want to ask. कुछ questions है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज अ क्लाइंट बाय इन हिज होल लाइफ? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज, लाइक मे बी say one property, two properties, average. I'm speaking about an average client. I'm speaking about a general client. I'm not speaking about Speaking those about those, wealthy investors, are or you I'm not speaking about those. I'm only speaking about general clients, normal clients. So I guess one property or maybe two property a client buy in his whole life. This is maybe the right answer. How much money does he spend on property investment? Is there any calculation of the investment which client do in the property investment? 50 lakh rupees, maybe 1 crore, maybe 2 crore rupees. I have I have the answer which actually pinch everybody's heart. It is actually the lifetime savings and lifetime liabilities. Is it right? Lifetime savings and lifetime liabilities. If a client buy average client buy a property, maybe buy a home, of course, so he actually invest everything he have. Maybe he sell his ancestor home, or maybe some gold jewelries, or any mutual funds savings, everything we have, and a loan which will put him for a lifetime liability. For a lifetime liability. This is a fact. This is a fact. Now, if is it so, तो कितना टाइम उसको देना चाहिए एक प्रॉपर्टी सर्च में? हाउ मच टाइम शुड ही गिव फॉर द प्रॉपर्टी सर्च? अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स और जिंदगी भर की लाइबिलिटीज को लेने के लिए, या जिंदगी भर की सेविंग्स को खर्च करके जिंदगी भर की लाइबिलिटीज को लेने के लिए उसे कितना टाइम देना चाहिए एक प्रॉपर्टी सर्च में? एज नीडेड. इट्स देयर इज नो टाइम. देयर इज नो लाइक कि 30 मिनट का कॉल चाहिए, या एक हफ्ते का टाइम चाहिए, या 2 हफ्ते का टाइम चाहिए. नो, as needed. It may take a year, it may take a month, it may take a week. Whatever is needed to invest his whole time, lifetime savings, and to take a lifetime liability. Now, what is our responsibility? What is our responsibility to handle these clients who are going to invest everything they have? What is our responsibility as a realtor? Just think about it. Today's session is very important. Trust me, I have done this throughout my life and results are fantastic. And trust me, this session is more valuable for your client instead, maybe more than you. This session is more valuable for your prospects. So if you will execute this, your client will become fan of yours.
If you'll execute this, client will say कि okay, I have a clarity. Whatever investment I'll do with you. This is the power of today's session. So our responsibility is to help our client in his property search. This is our core responsibility. Core responsibility. So what is our responsibility as a realtor? Our responsibility is very simple, to help our client in his property search. Now, what are we doing? Just think about it. Don't speak. Just think about it. What are we doing? Are we doing the sales or the counseling? Look, everybody is doing sales, of course. Everybody is here for the sales. But there's a thin line between sales and counseling. If you try to do sales, you will become one of the sales executive of the market. If you'll do the counseling, there is no comparison between you and anybody there outside market. So there's a major difference, a thin line, but very big difference between sales and counseling. अगेन आई एम सेइंग, अगर आप सेल्स करते हैं तो आप में और बाकियों की जो लोग हैं जो बाहर हैं मार्केट में, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो आप में और बाकियों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नाउ लेट मी स्पीक अबाउट काउंसलिंग। व्हाट इज काउंसलिंग? ये गूगल की एक छोटी सी वो है डेफिनेशन, आप सर्च करेंगे आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। काउंसलिंग इज अ फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी। लोगों से बात करने की एक थेरेपी है जिसमें एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड एग्जीक्यूटिव्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उसको कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंपल, ये काउंसलिंग की बेसिक सी डेफिनेशन है। जस्ट गूगल इट, यू विल गेट द राइट आंसर। नाउ व्हाट क्वेश्चन यू आस्क इन योर फर्स्ट क्लाइंट कॉल? एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर फर्स्ट कॉल। मेरी लास्ट सेशन में भी आपसे यही कहा था, हर चीज जो है, हर क्लाइंट का बिहेवियर, क्लाइंट का आपके साथ रिलेशनशिप पूरी तरीके से डिपेंडेंट है फर्स्ट कॉल पे। आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, या नींव जैसी रखोगे वैसा ही फल भोगोगे, ये भी एक कहावत है। तो ये बिल्कुल जनरल चीज है। सो फर्स्ट कॉल जो है आपका, फर्स्ट कॉल विद द क्लाइंट इज समथिंग विच विल डिसाइड whether this client will continue with you, or he will not continue with you, or he will treat you as a consultant, or he will treat you just as a sales executive. All things lie in first call. Now, if first call is important, what should be the key questions to be asked in first call? कौन से ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो हमें अपने पहले क्लाइंट कॉल, जो पहला कॉल हमारा क्लाइंट के साथ होगा, उसमें हमें करने हैं? आई एम श्योर many of us, what we do when we receive a lead, just a general lead for any client, for any project, हमें पता है कि एग्जाम्पल गोदरेज के किसी प्रोजेक्ट का लीड आया है, आपने फोन उठाया और क्लाइंट से ग्रीटिंग्स, हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग किया, एंड देन आपने बताया कि सर आपकी एक लीड आई है, यू आर इंटरेस्टेड इन गोदरेज दिस प्रोजेक्ट, सो ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल्स देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी बताइए, और आपने उस प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताना शुरू कर दिया, डिस्कशन शुरू कर दिया। दिस इज अ जनरल सेल्स कॉल, दिस इज अ जनरल सेल्स वे of doing business. What is my way? What is a consultant way? What is a realtor way? What is a professional way? पहला कॉल जो है वो क्लाइंट को रियलाइज कराने का है कि कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने जा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि हमें यह बताना है कि गोदरेज को लेकर आप कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, या टाटा को लेकर कितना अच्छा डिसीजन लेने जा रहे हो। नो, आई एम ओनली सेइंग कि पहले कॉल में डिस्कशन ये है कि कितना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिस्कशन है ये, कि आप शायद जिंदगी भर की सेविंग्स, और एक, या जिंदगी भर की नहीं बोल सकते तो मान लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आप लोन लेंगे तो और अगले 20-15 साल के लिए एक लाइबिलिटी भी लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट कॉल है ये, कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये।
तो सर अगर ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो हमें हर रोज, मार्क माय वर्ड्स, हर रोज बात करनी होगी। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैं काम करूंगा। आपकी रिक्वायरमेंट की जो जो की पॉइंट्स हैं उसको मैं सर्च करके दूंगा। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू शेयर एवरीथिंग व्हाट यू लाइक, टू शेयर एवरीथिंग व्हाट यू नीड इन योर प्रॉपर्टी, in your idle home or idle investment. I'm not saying everybody is buying a home. Some people buy commercial spaces, some people buy other things, some property, some people actually invest as an investor just to make good money. But again, it's a very big amount. I'm not saying uh, कि कोई 100 करोड़ वाला बंदा है तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए बहुत छोटा अमाउंट होता है। मनी इज मनी, इट्स वेरी क्रूशियल। Sometimes client says कि यार okay, no problem, it's just a 2 crore game, it's just a 1 crore game. Okay, it's very common for me, I frequently invest, it hardly matters for me. uh, so you have to realize this, you have to realize them कि sir, it is not a small decision that you are investing this amount in your property. Maybe you have lots of money, I understand that, I respect that, and may God give you more wealth, but even 10 rupees is the most. Like if you will invest 10 rupees, if you'll invest 100 rupees, if you'll invest 1,000 rupees, if you'll invest 1 crore rupees, every single penny spent in the market, it's my responsibility to spend on the right option. And what is the right option? Right option is simple, which actually suits you. Nothing is right, nothing is wrong in property. आपको जो पसंद आता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट है, दैट इज द राइट डिसीजन. So for that, we need to speak daily. And what we will discuss daily. So every day I'll do a research. Every day I'll work on your requirement. So for that, whatever I'll do, I'll share with you every day. मैंने आज क्या किया आपकी सर्च के लिए, मैंने आज क्या किया मैं आपको वो बताऊंगा. मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसका जवाब मुझे आपसे चाहिए हो. शायद वो कॉल 5 मिनट की हो, शायद वो कॉल 2 मिनट की ही हो, बट इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए आई नीड योर कमिटमेंट कि एटलीस्ट आप दिन में एक बार मुझसे बात जरूर करेंगे. अगर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं हुआ तो शायद ऑल्टरनेट डे हम डिस्कस करेंगे, बट नॉट बियॉन्ड ऑल्टरनेट डेज. हर दूसरे दिन या हर रोज आपकी प्रॉपर्टी की सर्च जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको मुझसे बात करनी होगी. तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि क्या आपको मेरे से प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं. सो मेनी टाइम क्लाइंट सेज कि आई डोंट नो यू. मतलब हाउ कैन आई से दिस कि मुझे आपसे प्रॉपर्टी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी. तो यू से ओके, perfectly ओके, परफेक्ट आंसर, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर. बट आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं, इसका आंसर तो है ना. तो वो कहेगा ऑफ कोर्स यस, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसलिए तो मैंने इंक्वायरी डाली है. तो यस, आई एम देयर एज अ कंसल्टेंट, एज अ ग्लोबल रियल्टर. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू, बट फॉर दैट यू हैव टू हेल्प मी फॉर द रिक्वायरमेंट. You are purchasing a property and I am your consultant. My responsibility is to identify the best possible option based on your needs. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन जब तक मुझे आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली नहीं पता, मैं तब तक बेस्ट ऑप्शन कैसे निकालूंगा. नाउ सम टाइम पीपल सेज कि यार रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे ये लोकेशन पसंद है, 3 BHK अपार्टमेंट चाहिए, 2 करोड़ का बजट है, आप मुझे कुछ निकाल के दे दो इसमें, जो मुझे पसंद आ जाएगा मैं खरीद लूंगा. नाउ लेट मी टेल यू द बिटर ट्रूथ. ये बात क्लाइंट की पहले बात में शुरुआत में हो जाती है, बट व्हेन यू स्टेप इनटू एनी प्रोजेक्ट देन क्लाइंट सेज अरे इसकी एंट्री खराब है. When you step into apartment, yes, show apartment, and client says ki, oh, this direction is not right, I want a northeast direction, or I want a compliant, vastu compliant apartments. Oh, this kitchen is very small, oh, I don't want an open kitchen, balcony is very poor, balcony is very small, oh, balcony is very big, what I'll do with this balcony, I need a bigger space in my apartment instead in the balcony. Who will sit in the balcony in say bigger size? There is no maid room. I am expecting a maid room. I have a maid. I need a separate space for her. Bedroom sizes are very small. I need bigger of bedrooms. Oh, इतना बड़ा bedroom का मैं क्या करूंगा? I need a bigger drawing hall or dining hall. What I'll do with this massive bedroom? I spend major of my time in the
in the common area, in the dining hall, drawing hall, there are only two washrooms in three bedroom. I need at least three washrooms. Or there are five washrooms in three bedroom apartment. What I'll do with five washrooms? I only need three. ये सारी स्पेस खराब होती है। इसको अगर मैं अपने अपने अपार्टमेंट्स के, अपने किचन के, अपने बेडरूम्स के, अपने ड्राइंग हॉल के साइजेस को इंक्रीज कराने में लगाऊंगा, ज्यादा अच्छा है। डोर साइज आपको लगता नहीं है बहुत छोटा है? कम से कम 4 फीट का तो होना चाहिए। इसकी हाइट, यार मेरी हाइट 6 फुट की है या 6.25 फुट की है, और ये तो सिर्फ 7 फुट का ही है। हल्का सा भी अगर मैं चल रहा हूं तो सर टकरा जाएगा मेरा, या मैंने हाथ ऊपर किया तो सर मेरा हाथ टकरा जाएगा। तो थोड़ी हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए? सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं है अपार्टमेंट यार। आजकल का टाइम तो वीआरवी का है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का है। रिवर्स को दूसरा क्वेश्चन, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का क्या करूंगा मैं? बेवजह इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। मुझे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं चाहिए। मुझे रिस्पेक्टिव रूम्स के अंदर जहां मुझे एसी लगाना होगा मैं लगा लूंगा, जहां मुझे कूलर लगाना होगा मैं कूलर लगा लूंगा। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। आप छोटे छोटे पॉइंट्स जो बाद में निकल के आते हैं, जब आप विजिट कराने जाते हैं, जब आप क्लाइंट के ऑप्शन शेयर करते हैं, तो हम क्लाइंट से इसकी नहीं नहीं यार ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। आप अपनी मेहनत डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्लाइंट की जो जरूरत है उसको समझा नहीं है, सिर्फ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, और आपके पास जो जो ऑप्शंस थे वो सब शेयर करना शुरू कर दिए। एंड देन क्लाइंट स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि यार यार ये गलत है, वो खराब है, अरे यार आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। अरे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए, मैं साइट विजिट के लिए आया हूँ, फैमिली को लेकर आया हूँ, और आप बता रहे हो कि यार इसमें तो इसका इसका तो फेसिंग ही खराब है, यार ये तो इसका तो साइज ही बहुत छोटा है, या इसकी बैल्कनी बहुत खराब है, या कुछ भी। दैट्स व्हाई यू नीड टू कम्युनिकेट every day. And whatever I am saying, please speak the same to your client. Exactly same. Why I need to speak to you every day? Because of all these queries, all these questions. These are your needs. If I have a better clarity, I'll help you in that. If I don't have the better clarity, then God knows. I need to understand every small and big details of your requirement and preferences. I require your equal participation in the search process. I'm searching property for you, not for me. Then I need your participation. It's not like यार आप मुझे प्रॉपर्टी के ऑप्शन भेज दो and I'll go through it. It's not like that. मुझे मालूम तो हो चाहिए क्या, तब तो मैं प्रॉपर्टी के ऑप्शन भेजूंगा। So I need a thorough discussion. If you have time, then only this discussion can proceed. अगर आपको लगता है कि यार मैं ऑप्शंस भेज दूंगा, आप उसको ब्रोशर्स को पढ़ लेंगे, तो वो तो आप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन। आपको किसी भी लोकेशन के प्रोजेक्ट्स को सर्च करना है, नॉर्मल गूगल कर लीजिए, यू विल गेट द ब्रोशर्स। उसमें फिर आपको मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत तब है जब आपकी जो जरूरत है, जो ब्रोशर में नहीं लिखी, जो मुझे पता है, जो आपने मुझे बताया है, उसके हिसाब से आई विल फाइंड अ प्रॉपर्टी और अ राइट ऑप्शन फॉर यू। देयर इज नो परफेक्ट प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड। We must find the best option suited to your needs. Understand this, and this is very important line. कुछ भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। कोई भी परफेक्ट प्रॉपर्टी जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। परफेक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? मेरे हिसाब से परफेक्ट प्रॉपर्टी वो है जहां पर सुबह का सूरज मैं देख पाता हूं। आपके हिसाब से हो सकता है कि परफेक्ट प्रॉपर्टी वो है जहां पर शाम का सूरज आप देख पाते हैं। सो डिफरेंसेस, और सबकी अपनी चॉइसेस है। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन कुछ और है, और आपके हिसाब से कुछ और है। तो मुझे आपके हिसाब से परफेक्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन जाननी है, तभी मैं एक बेस्ट ऑप्शन, आई एम नॉट सेइंग कि मैं सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में, तो मैं कहां से लेकर आऊंगा? लेकिन एटलीस्ट मैक्सिमम पॉइंट जो नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं आपके, कि यार ये 4 चीजें तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा बाकी चीजें मिल जाए अच्छी बात है, बट ये 4 चीजें मुझे मैंडेटरी चाहिए। तो आपको पता होगा कि यार ये 4 चीजों पर क्लाइंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो आपकी जो सर्च होगी वो उन 4 चीजों के बेसिस पर होगी। You may need to visit multiple properties to evaluate options. You should allocate enough time for phone calls or online meets to discuss available options. मुझे ये मत बोलिएगा कि अरे यार मैं अभी नहीं आ सकता, तभी नहीं आ सकता। प्लीज अंडरस्टैंड एंड बार बार रिपीट करिए, यू आर इन्वेस्टिंग योर लाइफ टाइम सेविंग्स एंड यू आर रेडी टू टेक लाइफ टाइम लाइबिलिटी टू बाय दिस प्रॉपर्टी। और तो आप टाइम ही निकाल सकते, टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो जिंदगी भर आप परेशान होंगे कि अरे यार उस टाइम जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया। और ये आपने कई बार सुना होगा, अरे यार लास्ट टाइम किसी एजेंट से मिला,
उसने मुझे यार पता नहीं क्या इन्फ्लुएंस किया, क्या समझाया, मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब यार मैं परेशान हो रहा हूँ। सुबह सूरज ही नहीं आता, धूप ही नहीं आती इसमें। इसमें बैल्कनी इतनी छोटी है, साइजेस इतने कब छोटे कमरे हैं। बड़ा नाम तो है, नाम तो बहुत बड़ा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन यार पार्क ही नहीं है सोसाइटी के अंदर। क्लब एरिया तो बहुत ही खराब है, बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी ऐसी कोई चीज नहीं है। यू आपने ये वाली बात हर बार कई बार सुनी होगी क्लाइंट से मुझसे कि यार उस टाइम पर ना मैंने बहुत जल्दबाजी डिसीजन ले लिया। अब यार वो प्रॉपर्टी भी खरीद ली है, सेविंग्स भी लग चुकी है, लोन भी चल रहा है। अब यार दूसरी प्रॉपर्टी कैसे खरीदूंगा, कब लूंगा। यू दिस इज अ कॉमन कॉमन स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट्स, कॉमन स्टेटमेंट। I expect you to share every small thing that is crucial for your search. Maybe your wife uh, play a vital role in property search. Maybe your father decision is more important in your property search. Maybe your son or daughter take important call in your property search. So I need their participation also. समटाइम्स आप कुछ चीजें देख पाते हैं और कुछ चीजें आप नहीं देख पाते, आपके फैमिली मेंबर्स देख पाते हैं, जिनको उसमें रहना है, जिनको जिनको उसमें पूरा जिंदगी निकालना है। तो अगर उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जो कि है, तो मुझे उनसे भी बात करनी होगी, या एक जॉइंट कॉल करनी होगी जिसमें मैं पॉइंटर्स क्रिएट करूंगा। सो अगेन आई एम सेइंग, आफ्टर दिस कॉल प्लीज स्टार्ट डूइंग द सेम नाउ। आफ्टर दिस कॉल इस डिस्कशन को अभी से शुरू कर दीजिएगा, अभी से। एंड जो क्लाइंट ये बोले अरे यार ब्रोशर भेजो मैं देख लूंगा, तो दैट इज नॉट योर क्लाइंट, ट्रस्ट मी। For him you are just a sales executive, that's it। अगर वो बोलता है अरे यार मैं टाइम नहीं मेरे पास, अरे भाई आप इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है, कैसे पॉसिबल है ये। सो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और आपको बहुत स्पेसिफिकली बात करने का। प्लीज सेव योर टाइम। Do not speak to thousands of clients every day. Speak five good clients every day. And trust me, these five will clients will give you enough of commissions, enough of prosperity throughout your life. Do not try to approach everybody in the market. Do not try to approach. Focus on good 10 clients. Try to build 10 good clients in your life. And trust me, these 10 clients will give you enough of business which can like give you everything which you expect from real estate. बट फॉर दैट आपको वो सारी मेहनत करनी होगी जो एक प्रोफेशनल रियल्टर करता है, जो एक सक्सेसफुल रियल्टर करता है या उसने किया है इसलिए वो सक्सेसफुल है। So these are few points, and most important thing which is non-negotiable is clear communication between us. This is non-negotiable. If you don't like the option, tell me कि यार आदित्य मुझे वो ऑप्शन पसंद नहीं आया जो आपने भेजा था। मैंने आपको मैंने रिकॉर्ड बताया था, लेकिन यार पता नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है यार, उसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। या फिर आपने कुछ चीज शेयर करी और मान लीजिए वो जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड आउट हो गया, तो आपको बताना होगा कि सर वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि यार हमें एक हफ्ते में डिसीजन लेना है, पर आपने उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, कोई बात नहीं है, विल फिगर आउट समथिंग एल्स, बट प्लीज टेक डिसीजन अ बिट क्विक। वो निकल चुका है। फोन कॉल्स ना उठना, ये वाली बातें आपको फर्स्ट कॉल पे ही करनी है कि सर दिस इज नॉन नेगोशिएबल। इफ यू आर बिजी ड्रॉप मी अ टेक्स्ट कि आदित्य आई एम बिजी, कैन वी स्पीक इन द इवनिंग, और प्लीज कॉल मी लेटर। एंड इफ यू से प्लीज कॉल मी लेटर, then please pick up my call when I call later. It's not just a message कि यार एक ठीक है यार फोन आ रहा है काट दिया मैसेज डाल दिया, नो। एंड इफ यू डोंट वांट me as your consultant, please let me know, I have no problem। I don't want to waste my time, I don't want to waste your time। अगर आपको लगता है कि आई एम अ वैल्यूएबल कंसल्टेंट, प्लीज गिव योर टाइम एंड प्लीज बी वेरी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। If there is some problem with loan, if there is some problem with your savings or funds or budget or anything, please let me know, because I am giving my 100% for your needs। I am giving my 100% for your property search। बट अगर मेरे पास क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो आज नहीं तो कल इस पूरी की पूरी सर्च को खराब कर देगा। आपकी जो मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपके लिए जो काम कर रहा हूं, पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी। So professionally, we have to respect each other's profession. Professionally, we have to work with each other for your need. So that's all from today's session. That's all from today's discussion. Please execute this from today onwards. Do not waste a single minute. And
We are like we'll celebrate Diwali from tomorrow onwards. So happy Diwali, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Please enjoy your day. Take care. नमस्कार. हैप्पी दिवाली आपको भी। Happy थैंक यू Diwali, sir. अंकित। आपको भी सर। बस करो।